خدا کے ڈر سے پلکوں کو بھگونا بھی ضروری ہے، گناہوں پر دل نادم کو رونا بھی ضروری ہے، اور زباں سے عشق احمد کے فقط دعوے نہیں چلتے، حقیقت میں پیارے آقا سے عشق ہونا بھی ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے والوں، سنو سنو رب کا فرمان، پارہ نمبر 4، پہلے رکوع کی آیت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیت میں واضح ارشاد فرما دیا۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں 3 باتیں خاص سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ حضرات محترم، ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری آیت میں اللہ نے واضح فرمایا، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ہی ڈرو۔ یعنی اب اس آیت کریمہ کے اس پہلے جز میں پہلا جو حکم اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اس آیت کریمہ کے اس پہلے حکم میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی اور سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ دل میں خوف ہوگا تو اللہ کا ہوگا، اللہ کے سوا دنیا میں کسی انسان کا، کسی عہدہ دار کا، کسی سرمایہ دار کا، کسی امیر کا، کبیر کا، کسی بھی رئیس کا ہمارے دل میں ڈر اور خوف ہرگز نہ آنا چاہیے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ سے ڈرنے کا تم پر حق ہے، دنیا میں اور کسی سے نہیں ڈر سکتے جو مومن ہے۔ اور یہی ہماری تاریخ رہی، اور یہی ہماری مومنوں کی تاریخ ہے۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سنو حضرات محترم، ہمیں ڈرنا ہے صرف اللہ سے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کتنا ڈرنا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی اس آیت کو جب آگے پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ اے مولا، پروردگار کائنات، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری بساط ہی کیا ہے تجھ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکیں؟ مولا، کیسے تیرے ڈرنے کا حق ادا کریں؟ ہم تو بڑے ہی نااہل نابکار ہیں، ہماری حیثیت اور اوقات نہیں مولا، تیرے ڈر کا حق کیسے ادا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں اپنی بساط اور اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق رکھو، یہ تم پر فرض ہے اور تم پر لازم اور ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں نے آپ کو 2 باتیں بتا دیں۔ پہلی اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور دوسری چیز حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق بندہ حقیقتاً اگر ادا کرنا چاہے تو سچی بات یہ ہے کہ ادا کر نہیں سکتا، اسی لیے اللہ نے فرما دیا اپنی حیثیت کے مطابق ڈرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق رکھو۔ اور فرمایا تیسری اور آخری بات اس آیت میں فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ یعنی دوستو، اپنی زندگی کو اسلامی طریقے سے اور اسلامی زندگی کے مطابق گزارو گے، اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بناؤ گے
तो हज़रात मोहतरम ज़रूर तुम्हें मौत इस्लामी मौत आएगी, ज़रूर तुम्हें ईमानी मौत नसीब होगी। और अल्लाह का कुरान यही कह रहा है, ऐ लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, डरो सिर्फ अल्लाह से हक़्क़ तुक़ातिही, क्योंकि उसी से डरने का हक़ है, और जैसा डरने का हक़ है अपनी हैसियत के मुताबिक वैसा डरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इंशाअल्लाह अगर तुम इस्लामी तरीक़े पे अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, अल्लाह से डर के, अल्लाह का खौफ दिल में रखे, तो तुम्हें मौत भी आएगी तो इस्लाम ही आएगी इंशाअल्लाह। तुम्हें मौत आएगी तो ईमान ही आएगी। और ये इतनी बड़ी सआदत है कि जिसका ईमान पर खात्मा होगा, अल्लाह के फजल व करम से कितने ही गुनाहगार हो, अगर अल्लाह फजल फरमाएगा तो उसका बेड़ा पार होगा। हजरात, भले ही बहुत सारे गुनाहगार अपने गुनाहों की सज़ा पाएंगे, लेकिन जिसका खात्मा ईमान पर होगा, वो एक न एक वक्त ऐसा होगा उसके लिए कि वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। तो ईमान पर खात्मा बेहद ज़रूरी है। जिसका ईमान पर खात्मा है उसी का बेड़ा पार है, लेकिन खात्मा ईमान पर नहीं, और ईमान उसका जो है खात्मे के वक्त छिन गया, माज़अल्लाह हज़रात मोहतरम, वो गुमराह हो गया, या शैतान का दाव पेच उस पे चल गया, शैतान के बहकावे में आ गया, तो फिर हज़रात मोहतरम चाहे कितना ही बड़ा मुत्तकी और परहेजगार वो दुनिया में रहा हो, लोग उसकी परहेजगारी का चर्चा कितना ही करते रहें, हरगिज़ उसकी बख्शिश नहीं हो सकती, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो खात्मा ईमान पर होगा, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। यही कुरान और हदीस का मफ़हूम हमें बताता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी के चाहने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में बेहद ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है, आइए कितना ज़रूरी है आपको हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म के वाक़े से अंदाज़ा हो जाएगा। खलीफ़े दोम सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबे कराम को जन्नत की बशारत दुनिया में अता फरमा दी, उनमें से दूसरा नंबर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का है। यानी हमारे नबी ने दुनिया में ही फरमा दिया था, ए उमर तुम जन्नती हो। हज़रात मोहतरम वो उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि नबी ने फरमा दिया, और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और हज़रात मोहतरम हुजूर ताजुश शरिया की ज़बान में हम ये कहते हैं कि जहाबानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। उस मालिक कुल और मुख्तार कुल नबी ने, महबूब करीम ने फरमाया, उमर तुम जन्नती हो। तो कोई शक नहीं उमर फ़ारूक़ आज़म के जन्नती होने में। लेकिन उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे, इतना रोते थे, मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आज हमने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान का तर्जुमा या उसको समझना हमने छोड़ दिया। उसका मफ़हूम तो हम क्या समझे, हमें कुरान पाक पढ़ने की फुर्सत नहीं। आइए उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपको शॉर्ट अंदाज में बताऊं, शॉर्ट टाइम में। सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खौफ़े खुदा से इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपके रुखसार मुबारक पर सियाह निशान पड़ गए थे। आपके आंसू बहने की वजह से, लगातार आंसू बहने की वजह से, आपके रुखसार पर आंसू बहने की वजह से 2 लकीरें सियाह निशान पड़ गए थे, और आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। आप खुदा के खौफ से इतना रोते थे, पूरी पूरी रात खौफ खुदा में रोते हुए गुजरती थी। जब आप कभी कभी कुरान पाक की आयत करीमा सुनते जिसमें अल्लाह से डरने का हुक्म होता, या क़यामत के दिन हिसाब और किताब करने का उसमें हज़रात मोहतरम अल्लाह का फरमान मौजूद होता, तो आप इतना डरते, इतना रोते कि आप बेहोश हो जाते थे। और जब होश में आते तो फरमाते, ऐ मौला काश उमर को एक तिनका बना दिया होता, काश उमर को एक तिनका बना दिया होता, उमर कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना होता। हज़रात उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कभी अल्लाह के खौफ से इतना डरते कि लोग ये महसूस करते कि उमर फ़ारूक़ आज़म बीमार हो गए हैं, मरीज़ हो गए हैं, और आपकी इयादत करने के लिए आपके घर पे आना शुरू हो जाते थे। ये उमर फ़ारूक़ आज़म का खौफ है।
حضرات محترم، ایک مرتبہ آپ اپنے اونٹ کا جو ہے زخم جو ہے دھو رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے تھے میں ڈرتا ہوں کہیں پروردگار کائنات میدان محشر مجھ سے اس زخم کے اور اس جانور کے درد کے بارے میں کہیں سوال نہ کر لے، اس لیے میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں اور اس کے زخم کو دھو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ تو جانوروں پر بھی اتنا رحم کرتے تھے، آج ہم کیسے ہو گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کون سی ہوا لگ گئی کہ ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں اور حضرات جانوروں کو تو کیا، آج ہم انسانوں کو حضرات محترم تکلیف پہنچا رہے ہیں، آج ہم اپنے مومن بھائیوں کو ستا رہے ہیں۔ کون ہے ایسا جو اپنے پڑوسیوں پر ظلم نہیں کر رہا الا ماشاءاللہ؟ کون ہے ایسا جو غریبوں کو نہیں ستا رہا ہے؟ جو حضرات ذرا سا عہدیدار ہے اس کو ذرا سا اللہ نے عہدہ دے دیا تو اس کا یوز کم مس یوز زیادہ کر رہا ہے حضرات۔ لیکن یاد رکھو ایک نہ ایک دن تم سے سوال ہوگا، اور وہ دن ایسا ہوگا میدان محشر کہ کوئی تمہاری سنوائی نہیں کرا سکتا، کوئی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات محترم قرآن پاک میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں انسان ذرا سی بھی بھلائی کرے گا میدان محشر اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر اس نے گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، میدان محشر اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب میں نے یہ پڑھا تو یقیناً حضرات محترم آپ بھی سنیں گے تو آپ کا دل مغموم ہوگا۔ میں نے پڑھا عمر فاروق اعظم اتنا روتے تھے خوف خدا سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرات محترم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا سے اتنا زیادہ ڈرتے تھے، خوف خدا اتنا زیادہ دل میں رکھتے تھے کہ آپ نے ایک بندہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا خوف خدا کے تعلق سے۔ فرمایا تجھے میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا کام کرنا ہے؟ کہا کام کچھ نہیں کرنا، تجھے مہینے کی تنخواہ بھی دی جائے گی، مہینے کی سیلری عمر فاروق اعظم اس کو دیتے تھے، اور عمر فاروق اعظم نے فرمایا تیرے بال بچوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور تجھے مہینے کی سیلری میں دوں گا، جو بھی ضروریات ہوں گی تیری زندگی میں میں پوری کروں گا، بس تجھے میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کام کیا کرنا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اے میرے دوست سن، تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، تیری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ تجھے میرے ساتھ رہنا ہے، اور جب تو دیکھے نا کہ عمر کسی بات پر ہنس پڑا ہے، دنیا میں کسی محفل میں کسی جگہ پر میں بیٹھا ہوں اور تو دیکھے کہ میں ہنس پڑا ہوں تو بس کہہ دینا اے عمر کیا موت کو بھول گئے؟ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو اپنے ساتھ رکھا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات جب کبھی کسی بات پر ہنس پڑتے وہ فوراً کہہ دیتا ہے عمر کیا موت کو بھول گئے؟ تو عمر فاروق اعظم وہی رونا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئینہ لیا، آئینے میں دیکھا کہ داڑھی کے کچھ بال سفید نکل آئے ہیں۔ آپ نے اس اپنے ساتھی کو بلایا اور فرمایا جا تیری چھٹی ہو گئی۔ کہنے لگا حضور ابھی آپ تو حیات ہیں، میری چھٹی کیسے ہو گئی؟ اب آپ کو موت کون یاد دلائے گا؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں نے آئینہ دیکھا ہے، آئینے میں نے اپنی داڑھی کو دیکھا تو داڑھی کے میرے چند بال سفید نکل آئے ہیں۔ اب عمر فاروق اعظم کو تیری ضرورت نہیں، عمر کو موت یاد دلانے کے لیے داڑھی کے چند سفید بال ہی کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چند سفید بال داڑھی کے کافی ہیں عمر کو موت یاد دلانے کے لیے۔ اللہ اللہ، آج وہ لوگ غور کریں کہ جن کی داڑھی پوری کی پوری سفید ہو گئی ہے، اور جتنی داڑھی سفید ہوتی جا رہی ہے گمراہی میں اتنا زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ آج حضرات محترم ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے۔ نوجوان کو دیکھو تو حضرات محترم دین اسلام سے دور، قرآن کی تعلیم سے دور، اور بڑوں کو دیکھو تو وہ بھی حضرات پتہ نہیں کس نشے میں ہے مغرور، اور حضرات داڑھی جتنی سفید ہوتی جا رہی ہے آج اتنی ہی زیادہ حضرات محترم ہم گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी के चाहने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन करने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो, क्योंकि हज़रात मोहतरम हमारे बुज़ुर्ग रातों रात अल्लाह के खौफ में रोते थे, और वो इतने नेकोकार होकर भी अल्लाह के खौफ में रोते थे। क्यों रोते थे? किसी कहने वाले ने कहा है कि मैं रातों को उठ के रोता हूँ जब सारी दुनिया सोती है, मैं रातों को उठ के रोता हूँ जब सारी दुनिया सोती है। जो याद खुदा में अश्क बहें वो अश्क नहीं वो मोती है, जो याद खुदा में अश्क बहें वो अश्क नहीं वो मोती है। हजरात, खौफ खुदा में जब हम रोते हैं तो हजरात मोहतरम हमारे गुनाह धुलते हैं। खौफ खुदा में रोने का क्या फ़ायदा? खौफ खुदा दिल में रखने का क्या फ़ायदा? हजरात मोहतरम तो सुनो, जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा हजरात मोहतरम किसी गरीब को नहीं सताएगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा उसके पास अगर माल होगा तो उसकी ज़कात भी पूरी पूरी अदा करेगा। हजरात, आज हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं, इसलिए हम ज़कात भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। सुनो सुनो, जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा और वो साहिब इस्तिताअत है तो हजरात मोहतरम वो हज भी करेगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा तो बेवाओं का सहारा भी बनेगा। हजरात मोहतरम, अगर हमारे दिल में खुदा का खौफ होगा तो हम यतीमों का सहारा बनेंगे, बेवाओं का आसरा बनेंगे, हम नमाज पंजगाना को भी पढ़ेंगे। हजरात, रमज़ान के महीने में पूरे रोज़े रखेंगे, एक रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे। हजरात मोहतरम, इसी तरीके से दुनिया में जितने भी भलाई के और नेक और अच्छे काम हैं, जन्नत में जाने के जितने भी काम हैं, वो सारे काम हम करेंगे अगर खुदा का खौफ हमारे दिल में होगा। और अगर खुदा का खौफ ही हमारे दिल से निकल गया, हलाल कमाई हो या हराम कमाई हो, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि आज देखा जा रहा है। अल्लाह अकबर, कमाई हमने कहाँ से की? हजरात, हमने हलाल कमाया कि हराम कमाया, हमें कोई तमीज़ नहीं, बस पैसा हो चाहे जैसा हो। हजरात, दिल से अल्लाह का खौफ निकलेगा तो हमारी मस्जिदें वीरान होती नज़र आएंगी, जैसा कि आज नज़र आ रही है। दिलों का खौफ, दिलों में अल्लाह का खौफ जब नहीं रहेगा तो हजरात मोहतरम फिर हम बेवाओं का सहारा भी नहीं बनेंगे। हजरात, यतीमों का हजरात मोहतरम हम मददगार नहीं बनेंगे। हजरात मोहतरम, इसी तरीके से हम ज़कात भी अदा नहीं करेंगे, हम हज बैतुल्लाह की ज़ियारत भी करने नहीं जाएंगे, पैसा होने के बावजूद, इस्तिताअत के बावजूद। हजरात मोहतरम, हम आलिमों का अदब भी भूल जाएंगे। हजरात, अपने बड़ों का अदब नहीं करेंगे, छोटों पे शफ़क़त नहीं करेंगे। अगर खुदा का खौफ नहीं होगा तो ये सारे बदआमालियाँ हमारे हिस्से में होंगी। और जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, खुदा की कसम, वो कोई भी गुनाह करने के करीब नहीं जाएगा, बल्कि अपने आप को भी गुनाह से बचाएगा और अपने बच्चों को भी, अपने घर वालों को, जहाँ तक उसकी हैसियत होगी वो उनको गुनाहों से बचाने की कोशिश करेगा। हजरात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खुदा का खौफ बेहद ज़रूरी है। वो उमर फारूक आज़म और वो सहाबे इकराम और वो हमारे बुज़ुर्ग सलफ़ सालिहीन जिनके जन्नती होने में भी शक नहीं। हजरात, आज हमारे खाते में ऐसा क्या है जो हम तकब्बुर करते हैं? हमारे नामे आमाल में क्या है? नमाजें हमारे खाते में नहीं, रोज़े और हज और ज़कात से हम हजरात मोहतरम बिल्कुल बरी हो चुके हैं। हमें कोई ज़कात अदा करने की फ़िक्र नहीं। साल हर साल गुजर जाएं, 10 साल गुजर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हजरात, हम अल्लाह का फरमान सुनकर भी हजरात मोहतरम एहसास नहीं करते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अल्लाह फरमाता है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तुम्हारे लिए पसंदीदा दीन और मज़हब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। अल्लाह ने मज़हब इस्लाम को हमारे लिए पसंद फरमाया, तो इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो दुनिया में भी इज्जत पाओगे और मरने के बाद जन्नत पाओगे। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज हमारे शब रोज़ गुज़र रहे हैं, हमें एहसास तक नहीं। हजरात, किसी कहने वाले ने कहा है कि आज का इंसान गुनाहों को मोल खरीद रहा है और नेकियों को फ्री में कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आज हमें समझाने के लिए आपको एक मिसाल दूं। आज हजरात मोहतरम, हमारी कोई दुनियावी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, उस मोबाइल में हमें रिचार्ज करना होता है। हर महीने हमें 250, 350 कितने का रिचार्ज करना होता है, तभी ये मोबाइल बात कराएगा,
तभी इस मोबाइल में हम ये तकरीर सुन पा रहे हैं, जो बयान आप सुन रहे हैं। तो हजरात मोहतरम, वो ज़रूरी है मोबाइल चलाने के लिए, और इस रिचार्ज करने में अगर कोई ऑफ़र हमें मिल जाए, फेक मैसेज ही अगर हमें रिसीव हो जाए व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी के ईमेल के ज़रिए, तो हम उसको सच मानकर और उस पर क्लिक करके 1 साल का फ्री रिचार्ज जीतने का ऑफ़र, मौका, उस पर फ़ौरन क्लिक कर देंगे कि हमें 1 साल का फ्री रिचार्ज मिल जाए, जबकि वो झूठा होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतने ऑफ़र अता फरमाए, हज़रात मोहतरम, इतने ऑफ़र अता फरमाए कि सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात नमाज पंजगाना फ़र्ज फरमा के हम पे इतना बड़ा एहसान फरमाया, इतना बड़ा एहसान फरमाया। हज़रात मोहतरम, जितने सांस हम ज़िंदगी में अपने लेते हैं, सुबह से शाम तक हम कितने सांस लेते हैं 24 घंटे में, उन सब का हक़ अगर अदा करना है तो हज़रात मोहतरम, हमारे नबी का फरमान है, ए लोगो, तुम सांसों का हक़ अदा करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी का हक़ अदा करना चाहते हो, अपने सांसों का हक़ अदा करना चाहते हो, तो फजर की नमाज को अदा करो, ज़ुहर तक के सांसों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। ज़ुहर की नमाज को पढ़ लोगे, असर तक के सांसों का शुक्रिया अदा हो जाएगा, असर की नमाज को अदा करोगे, मगरिब तक जितने सांस लिए सबका शुक्र अदा हो गया, मगरिब की अदा की, हज़रत ईशा तक जितने सांस लिए सबका शुक्रिया अदा हो गया, ईशा की पढ़ के हम सो गए और उठकर सुबह को फजर की नमाज अदा कर ली। हमारे नबी फरमाते हैं, जितने सांस हमने 24 घंटे में लिए हैं, हज़रत सांस अंदर और बाहर हमारी आई गई है, सारे सांसों का शुक्रिया, गोया कि ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने इतने एहसान किए तो उन सांसों का शुक्रिया अदा हो जाता है अगर हम नमाज पंजगाना पढ़ते हैं। लेकिन आज इस ऑफ़र को हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हज़रात, दुनिया के मामले में कोई ऑफ़र हो तो हम उस ऑफ़र को बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं, उस चैलेंज को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अगर दीन के मामले में नेकी कमाने का अगर कोई ऑफ़र हो तो हज़रात मोहतरम, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी कम नसीबी नहीं तो और क्या है दोस्तों। मैं बार बार आपको कहता हूँ दोस्तों, अगर वाकई तुम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क अपने दिल में रखते हो, तो आज तुम्हें और हमें सबको ज़रूरत है कि हम दीन इस्लाम के मुताबिक, अपने महबूब के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हज़रात, दावत तो सब करते हैं, लेकिन वही शेर मुझे याद आता है और मैं इस शेर के साथ ही आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहता हूँ कि खुदा के डर से पलकों को भिगोना भी ज़रूरी है, खुदा के डर से पलकों को भिगोना भी ज़रूरी है, गुनाहों पर दिले नादिम को रोना भी ज़रूरी है, और ज़बां से इश्क़ अहमद के फ़कत दावे नहीं चलते, ज़बां से इश्क़ अहमद के फ़कत दावे नहीं चलते, हकीकत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क होना भी ज़रूरी है, हकीकत में प्यारे आका का इश्क होना भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें अपना खौफ अता फ़रमाए, नमाज़ों का ज़ौक़ व शुक्र अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।